اللهم صل على سيدنا مولانا محمد محمد النبي الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. حضرات، اسٹیج پر علماء کرام اور شعراء کا جم گٹھا ہے. باقاعدہ میں سب کے نام سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آتا ہے. واہ واہ واہ، بے شک بہت اچھا. واہ. اور یہ مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا دل باغ باغ ہو گیا کہ کم سے کم اتنا تو ہی ہے لوگوں میں کہ میلاد سننے کے لیے حاضر ہے. اور دعا ہے رب قدیر رؤوف رحیم آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائیں. آمین ثم آمین. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بتانے کے لائق ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں دل کھول کر میں یہاں تقریر نہیں بول پایا آج تک، جی کھول کر بول نہیں پایا. میں 12 ربیع الاول میں ایک بار آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی پورا نہیں کر پائے، اور اس کے بعد کچھ خاص باتیں بتانے والی ہیں. لیکن چلیے، جشن غوث الورا ہے تو الگ موضوع لانا مناسب نہیں ہے. الگ موضوع کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک پروگرام اور ہوگا. الگ موضوع کے لیے جو آپ کی ہدایت کے لیے، خاص ہدایت کے لیے خاص کر وہ پروگرام ہوگا. اور ہدایت بہت ضروری ہے کیونکہ انسان، ہمارا معیار، ہمارا کلچر، ہمارا کریکٹر اتنا گر گیا ہے کہ باہر ہم سینہ تان کر گھومتے ہیں اور گھر میں مائیں ناک رگڑتی ہیں. باہر ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، گھومتے ہیں، اور ماؤں کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور اگر مائیں تم سے کہہ دیں بیٹا مطلب مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو تم اس طریقے سے انہیں گالی دیتے ہو، دھتکارتے ہو کہ معلوم پڑتا ہے ارے نادان تو بھی صاحب اولاد ہے، ارے نادان تو بھی کبھی بچہ تھا. آج تیرا بچہ ذرا سا زکام ہو جائے تو ساری رات نہیں سوتا. اور یاد کر جب تو بچہ تھا اور اسی ٹھنڈ کی رات میں تو جب بسترے پر پیشاب کر لیتا تھا تو وہی ماں جسے آج تو دھتکارتا ہے، وہی ماں جسے آج تو گالی دیتا ہے، وہی ماں جسے آج تو ٹھوکر مارتا ہے، وہ اپنا دوپٹہ اتار کر وہاں بچھا کر خود لے جاتی اور تجھے سوکھے دیتی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اس ماں کو تو دھتکارتا ہے، اس باپ کو تو ٹھوکر مارتا ہے کہ تیرے لیے اس نے زمین اور آسمان ایک کر ڈالی. ارے نادان، تو کیا سمجھتا ہے کہ میلاد کرنے اور سننے سے جنتی ہو جائے گا؟ کیا جانتا ہے؟ حالانکہ میں موضوع الگ نہیں لے جانا چاہتا ہوں. میں ایک نقطہ چھوڑا ہے ہم نے، اس پر ہماری گفتگو ہوگی مکمل، لیکن ابھی نہیں، کچھ دن بعد. آج کے دور میں دیوانے نبی کے لیے، آج کے دور میں دیوانے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتے ہیں. اور کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور سچوں کے ساتھ. اب یہ سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ کون ہیں؟ ہم ڈھونڈے کہاں؟ مطلب کس کو کہیں؟ آپ تو ہر آدمی کہتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، کچھ سچ بول رہا ہوں. ہر آدمی جس سے آپ پوچھیں گے چاہے علاقے کا سب سے بڑا جھوٹا ہو،
لیکن کہے گا میں سچ بول رہا ہوں، قرآن کہتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھیں، یہ قرآن تو ہی بتا کہ مطلب کون ہے سچے لوگ؟ اے قرآن تو ہی بتا ہم کس کی پیروی کریں، اے قرآن تو ہی بتا ہم کس کی طرف جھکیں۔ تو قرآن نے بتایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ ملال ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ اب ہم چل رہے ہیں، لے چل رہے ہیں آپ کو دھیرے 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 لے چل رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفل منعقد کی گئی۔ آپ کے باپ کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ، اور آپ کے نانا کا نام عبداللہ سومئی۔ جی یہ تین باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، انہی پر گفتگو کریں گے، ہم بہت زیادہ دیر نہیں بولیں گے، بیمار آدمی ہے بھیا، کیا سمجھے، طبیعت برابر نہیں ہے۔ انہی تین باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ آؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے والد ہیں۔ آؤ میں بتا رہا ہوں کہ سچے لوگ کون ہیں، آؤ میں بتا رہا ہوں کہ پکے لوگ کون ہیں، آؤ میں بتا رہا ہوں کہ پرہیزگار لوگ کون ہیں۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ شام کو افطار کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب سے آپ بالغ ہوئے، آپ کا یہ دستور تھا، آپ ہمیشہ روزہ رکھتے، آپ ہمیشہ روزہ سے رہتے، اور روزہ رہنے کے بعد بھی، اور جنگی دوست آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے نفس سے جہاد کرتے، اپنے دل سے جنگ کرتے، ہمیشہ کا یہ دستور تھا آپ اپنے دل سے جنگ کرتے، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو مار لیا وہی اولیاء کرام نے شمار کر دیا، وہی اولیاء کرام نے شمار ہوا۔ اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست چلے جا رہے ہیں، روزے سے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، مطلب روزے کی حالت میں چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا، ہم تو بھول گئے نماز کیا، ہمیں تو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ ہم تو مطلب سوچ رہے ہیں کہ ارے وہاں چلے گئے، فلانا مولانا کے ہاتھ کو چوم لیا، فلاں پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، فلاں مولانا کی خدمت کر دی، ہم جنتی ہو گئے۔ جنت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر ہے جو پٹا کاٹ کر تجھے دے دے گا، پٹا کاٹ کر دے دے گا۔ ارے ادھر میدان محشر میں اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ فدا کا اپنی واپی، یا رسول اللہ میرے بابا باپ پر قربان، آپ کے اتنے امتی ہے، آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے محشر میں؟ جب اولین سے آخرین تک پوری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، میرے امتیوں کے آ جائے وجود 14 رات کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عرص مقدس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت اچھا حضرت، واہ ماشاءاللہ۔ اب تو بتا بھیا کتنی بار وضو کرتا ہے دن بھر میں، کتنی بار؟ اب اللہ کے رسول تجھے کیسے پہچانیں گے کہ میرا امتی ہے؟ اللہ کے رسول تجھے کیسے پہچانیں گے جب اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امتیوں کے آ جائے وجود چمکتے ہوں گے، میں اس سے پہچان جاؤں گا۔ کیا پہچان لے کے جاؤ گے؟ تو کون سی صورت بنا کے لے کے جاؤ گے؟ داڑھی کو اس طریقے سے تو چھلواتے ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، بھویں پاک گئی ہیں، کال چکنا ہی ہونا چاہیے، کال چکنا ہی ہونا چاہیے۔ یاد کر، تو جانتا ہے داڑھی کا مطلب؟ جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ داڑھی کے بارے میں تو جانتے ہو؟ بالکل نہیں جانتے ہو۔ دیکھو سنو بھائی، برا نہیں ماننا، کیونکہ میں نصیحت کر رہا ہوں، ڈانٹوں گا میں، پیر ہوں میں، ڈانٹوں گا تمہیں، کیونکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سنو، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ولایت کے کتنے درجے ہیں اور ولی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
कोई जब वली अब विलायत के मर्तबे पर फायज होकर अपना सर उठाता है तो देखता है किसी नबी के कदमों पे है कि कोई वली में मूसमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल है, किसी में हजरत ईसा का जलाल है, किसी में हजरत याकूब का है, किसी में हजरत यूसुफ का है। मतलब इस तरीके से तो हजरत सैयदना गौसे आजम से लोगों ने पूछा तो आपने कहा मैं जलाले मुहम्मदी पर हूं, मैंने अपना सर उठाया तो अल्लाह के रसूल के कदमों पर रखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। कर रहा हूँ, नसीहत दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर की बात अगर लाता हूँ तो ये हमारे उलमाए कराम बैठे हुए कहेंगे लोग ये साहब भटक गए, तो मैं भटकना नहीं चाहता। दाढ़ी बहुत बुलंद मकाम रखती है, दाढ़ी को नूर कहते हैं, नूर। और जब तुम नूर ही छिलवा के डालोगे, अंदाजा लगा, जब तुम नूर छिलवाओगे, जब तुम दाढ़ी छिलवाओगे तो कहाँ जाओगे? कैसे? मतलब ना तुम नमाजी हो, ना तुम रोजेदार हो, और ना ही तुम ज़कात देने वाले हो, ना ही तुम हज करने वाले हो, ना ही मोमिनीन की तरह सुन्नत रखने वाले हो, तो क्या होगा? आओ मैं बता रहा हूँ, सच्चे लोगों की तरफ ले चल रहा हूँ, बहका नहीं घबराओ ना, नसीहतन दो बात बीच में ले आया हूँ। आओ मैं बता रहा हूँ, हज़रत मूसा जंगी दोस्त चले जा रहे हैं, आप रोजे से हैं, कई रोज हो गया है, कई दिन गुजर गया है, उनको मतलब कोई देखने वाला नहीं गया, चले जा रहे हैं। के वक्त एक दरिया के किनारे आप तस्वीर ले जा रहे थे, वो नमाज का वक्त हो गया, आप रुके, रुकने के बाद वजू किया, वजू करने के बाद वजू करके उठना चाहते थे, आपने देखा दरिया में एक शेर बाहर चला आ रहा है, आप मतलब रुक गए, आपने वो शेर उठाया और उठाने के बाद सोचा जब मतलब रोजा इफ्तार का वक्त हो जाएगा तो हम इस शेर से रोजा इफ्तार करेंगे। अंदाजा लगाइए, रोजा शेर से इफ्तार करने के लिए आपने दरिया में बहते आया हुआ शेर रख लिया, और रख लेने के बाद जब मगरिब का वक्त हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, तो आपने रोजा इफ्तार किया, और रोजा इफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद इमाम ने झिझोड़ कर पूछा, ये अभी साले मूसा जग्गी बताओ, कल खुदा की बारगाह में अगर अल्लाह ने तुमसे पूछ लिया कि ये मूसा जग्गी मुझे ये बताओ, जो शेर तुमने खाया था क्या तुमने उसे खरीदा था या मालिक से क्या मिली थी, तो ये मूसा बताओ कल खुदा की बारगाह में क्या जवाब दोगे? इतना सुनना था कि हम लड़च गए, कांपने लगे, आपका डर खौफ पैदा हुआ, खशियत इलाही डर पैदा हुआ, कहा बड़ा गजब हो गया, मैंने बेइजाजत से तो खा लिया है। अब आप ये सोचा हो न हो, मतलब इसी दरिया के किनारे कोई दरख्त लगा होगा, चलो पता लगाते हैं। अब आप दरिया के किनारे चले जा रहे हैं, बात को जहन में डालते चलिएगा, जहाँ बात समझ में ना आएगी मुझे इशारा कर दीजिएगा, तो मैं तुम्हारे भाषा में बात करूंगा, फिर मैं तुम्हारे भाषा में बात करूंगा, जहां बात नहीं समझ में आएगी। सुनते चलिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। अब आप दरिया के किनारे किनारे चले जा रहे हैं, दरिया के किनारे किनारे चले जा रहे हैं, तो काफी दूर चले जाने के बाद आपने देखा एक सेब का बाग लगा हुआ है, और बाग की एक टहनी मतलब नदी की तरफ झुकी है। आपने दिल में फैसला किया, वो न हो अबू साले मूसा जंगी दोस्त, वो न हो इसी डाल से टूटा हुआ सेब है, और इसी बाग का के मालिक के पास में जाना चाहिए। अंदर गए तो देखा मतलब हजरत अब्दुल्ला सुमई इबादत में मसरूफ है। जब वो नमाज से फारिग हुए, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने उन्हें सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आना हुआ? तो कहा हुजूर आपके बाग से का एक शेर समंदर नदी में गिरा था, जो बहता हुआ जा रहा था, मैंने आपसे इजाजत के बगैर वो शेर से रोजा इफ्तार कर लिया है, और मैं उसी के माफी के लिए हाजिर हुआ हूँ। अब हजरत अब्दुल्ला सुमई अपने दौर के बहुत बड़े औलिया कराम, बहुत बड़े औलिया कराम, देखा नीचे से ऊपर तक, समझ गए ये है कोई अल्लाह का नेक बंदा ही, है कोई अल्लाह का परहेजगार बंदा ही, है कोई अल्लाह का खौफ रखने वाला। उन्होंने कहा ठीक है शेर तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा 12 साल मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, तब हमें तुम्हें शेर माफ करेंगे। अब जरा दिल पे सोचो, अरे नौजवानों, अरे बुजुर्गों, अरे हमारी माओ बहनों, दूसरों का माल हड़प करने वालों, दूसरा का खेत उखाड़ कर लाने वालों, दूसरे के यहाँ डाका मारने वालों, बताओ कल खुदा की बारगाह में जब तुम्हारी मतलब पेशी होगी, जब तुम्हें तलब किया जाएगा, क्या मुंह लेके जाओगे? क्या जवाब दोगे? नेक बंदों की बात बता रहा हूँ,
परहेजगार लोगों की बात बता रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने देख लिया कि ये बड़ा परहेजगार है, बड़ा नेकोकार है, बड़ा आबिद है, बड़ा जाहिद है, तो उन्होंने कहा 12 साल, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 12 साल के लिए बताया कि 12 साल मेरे बाग की रखवाली करो, मतलब पेड़ को पानी दो, इसकी रखवाली करो। अब इन्होंने सोचा, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फौरन मतलब रुक गए, आपने कहा हाँ मुझे मंजूर है। अब 12 साल तक आप पानी देते रहे, 12 साल तक आप मतलब वहाँ पासबानी करते रहे और इबादत भी कर रहे हैं, मतलब नमाज भी पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं और मतलब बाग की सिंचाई भी कर रहे हैं। 12 साल का अरसा गुजर गया। 12 साल का अरसा गुजर जाने के बाद आप हज़रत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में हाजिर हुए और कहा हुजूर अब तो शेर माफ कर दीजिए, अब तो शेर माफ कर दीजिए। तो कहा माफ कर दूंगा, एक शर्त है। कहा एक शर्त और है। कहा हुजूर अब वो क्या शर्त है? कहा मेरी एक बेटी है, अंदाजा लगाइए। कहा मेरी एक बेटी है जो आंख से अंधी है, जबान से गूंगी है, कान से बहरी है, हाथ से लुंगी है, पैर से लंगड़ी है। अगर तुम उसे निकाह करने के लिए तैयार हो जाओ, अगर तुम उसे निकाह कर लो तो मैं तुम्हें शेर माफ कर दूंगा। अब अल्लाह का इतना खौफ हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को, अल्लाह का इतना खौफ। अब अंदाजा लगाओ इसमें हमारे नौजवान मतलब बैठे होंगे, अगर उनसे कोई कहे ए भैया मोटरसाइकिल मिल रही है, एक लड़की एक आंख की कानी है, तो तुम शादी करने के लिए तैयार ना होगे? कहोगे कानी मानी से कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा? लेकिन खसियत इलाही देखिए, अल्लाह के सामने खड़ा होने से जो डरा, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह उसके लिए 2 जन्नतें अता करेगा। 2 जन्नत है। अब अंदाजा लगाइए, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने सोचा नहीं कि थोड़ी देर मतलब सोच ले कि मतलब लड़की इस तरीके से है और मतलब कैसे निकाह करूं। आपने फौरन हाँ कह दिया। अब जैसे हाँ कहा तो ये आजकल का दस्तूर नहीं था कि औरतें ढोल लेके गाना गाती, अल्लाह का मनावी जंजीरिया हिलाई के झाझर के हुआ गंगा जल पानी, वो दौर नहीं था। इस्लाम का वो दौर था, इस्लाम का वो जमाना था। शाम हुई, 2-4 तस्वीर इकट्ठा हुए और मतलब खुतबा पढ़ा गया, निकाह हो गया। अब निकाह होने के बाद हजरत सोई ने अपनी लड़की भेज दी। अब लड़की मतलब घर के अंदर गई, जो घर के अंदर लड़की को पहुंचा दिया गया और रात को उसने उसी में जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त दाखिल हुए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नुक्ता दिए जा रहा हूँ, आजकल हमारा मौसम इतना बिगड़ गया है, आजकल हम इस तरह मतलब गुमराह हो गए हैं कि जब हम घर में दाखिल होते हैं तो सलाम नहीं करते, हम कहते हैं अरे तो हमारी बीवी ही, तो क्या तेरी बीवी तेरे पैर की जूती है? क्या तेरी बीवी तेरे पैर की जूती है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मतलब घर में कोई हो या ना हो, अगर घर के अंदर औलाद हो या बाप हो या माँ हो, जब दाखिल हो तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहिए। नुक्ता दिए जा रहा हूँ, समझते चलिए। हजरत मतलब अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त घर में दाखिल हुए, अस्सलाम वालेकुम कहा। अब लड़की खड़ी हो गई, लड़की खड़ी हो गई, उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप वापस लौटा, कमरे से वापस लौटा है, उसने रूसी है, कमरे से बाहर लौटा है। सारी रात दरवाजे के बाहर इबादत करते रहे। सुबह हुई तो फजर की नमाज के बाद आप हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में हाजिर हुए और कहा हुजूर बाला बड़ी भूल हो गई है, बड़ी गलती हो गई है। आपने बताया था लड़की अंधी है, आपने बताया था लड़की बहरी है, आपने बताया था लड़की गूंगी है, आपने बताया था लड़की लूंगी है, आपने बताया था लड़की के पैर नहीं है। लेकिन जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, सलाम किया, लड़की खड़ी हो गई और उसने सलाम का जवाब दिया तो वो धोखा हो गया हुजूर। हो सकता है कोई दूसरी लड़की हमारे कमरे में चली गई। हजरत अब्दुल्ला सुमई मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा उन्होंने बैठो मेरे पास, बिठाया
और बिठाने के बाद बताया, अरे बेटे मेरी बेटी मतलब जंगली इसलिए है कि घर से बाहर उसने कभी मतलब कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए है कि शरीयत के खिलाफ कभी उसके हाथ नहीं उठे, क्योंकि इसलिए है कि कुरान के अलावा कभी उसने कोई सवाल मुझसे नहीं निकाला, अंधी इसलिए है कि उसने कुरान के सिवाय और अपने माँ बाप के सिवाय किसी को देखा नहीं, और मतलब गुंगी इसलिए है, पहली इसलिए है कि कुरान के अलावा उसने शरीयत के खिलाफ कोई बात सुनी ही नहीं। अब जिसकी माँ इस तरीके से हो तो उसका बेटा अब्दुल कादिर जैसा नहीं होगा तब कैसा? जिसकी माँ इस तरीके से हो, जिसका बाप इतना परहेजगार हो और जिसकी माँ इतनी परहेजगारा हो, उसका बेटा अब्दुल कादिर जैसा नहीं होगा तो कैसे होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, 7 साल की उम्र जब आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा की हुई तब हज़रत अब्दुल कादिर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। 60 साल की उम्र, जबकि 60 साल की उम्र में औरतों से बच्चे की उम्मीद नहीं होती। 60 साल की उम्र में आप पैदा हुए और पैदा हुए तो आपने वो करामात दिखाई। आइए मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तारीखों में आया है कि जिस दिन मतलब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, आपके महल्ले में, आपके इलाके में 1100 बच्चे पैदा हुए थे और सब लड़के थे, कोई लड़की नहीं थी। और हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के पैदाइश के वजह से अल्लाह तआला ने 1100 लड़कों को ये काबिल बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, रौदा बहादुर बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनिए, और करामत मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आप पैदा हुए शाबान का आखिरी दिन मतलब था, और मतलब शाबान मतलब खत्म हो चुका था, रमजान का चांद निकल आया था, लेकिन मतलब आसमान अब आलूदा था, आसमान पे बादल था, चांद दिखा नहीं। हम लोग हैरान और परेशान हैं, लोग मतलब बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आज हमारी तरह लोग नहीं थे यार 2 दिन और बढ़ जाए। बाद लोग को ऐसे कहते हैं यार 15 दिन हो जाए इधर और क्या 15 दिन उधर। फार्मूला देखिए, अगर कोई बेरोजगार से आप पूछ ले तो वो कहता है नहीं क्या यार 15 दिन इधर 15 दिन उधर देख लेंगे, क्या 15 दिन इधर उधर में महीना पूरा हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, और लोग जानते थे कि खानदानी फलाह वो सलाह के लोग हैं, ये जो भी बात बताएंगे शरीयत के अलावा नहीं बताएंगे। गांव वाले इकट्ठा हुए, उन्होंने पूछा आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा से कि पूछा कि मतलब आपका चांद हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने कहा चांद तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है, मेरे यहाँ जो लड़का पैदा हुआ है, शहरी तक उसने दूध पिया और उसके बाद अभी तक उसने दूध नहीं पिया। तो इससे मुझे पता चला कि चांद निकल आया है और ले चल रहा हूँ। अब मतलब परवान चलने लगे, सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बढ़ने लगे, बढ़ते चले जा रहे हैं। 5 साल की उम्र हो गई, 5 साल की उम्र हो गई आपकी। तो आपकी वालिदा ने कहा इसको पढ़ाया जाए, आपकी वालिदा ने कहा पढ़ाया जाए, मदरसा भेजा गया। मदरसे में जब मौलवी की बारगाह में आप पहुंचे, बड़े अदब से इन्होंने मौलवी को सलाम किया। मौलवी ने बिठाया, कहा अब्दुल कादिर, कहा हाँ हुजूर, कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मौलवी की ज़बान से निकला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इन्होंने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयकुनु शुफाअ लिन्नासि मा वल्लाहु तिलका रुसूलु फतन्ना बा'दहुम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। 18 पारा सुना दिया। अब 18 पारा पर जब आप रुक गए तो मौलवी ने पूछा बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, बेटा सीखने आए हो या सिखाने आए हो, बेटा राह बताने आए हो या भटके हुए को राह देखने आए हो, बेटा ये तुमने कहाँ से सीखा है, बेटा ये तुमने कहाँ पढ़ा है? तो हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अरे उस्ताद मुकर्रम, मेरी वालिदा 18 पारा हाफिजा है, मेरी वालिदा 18 पारा की हाफिजा है। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में था, जब मैं अपनी वालिदा के पेट में था, मेरी माँ और
कुरान की तिलावत किया करती थी और मैं इस्तेमाल कर दिया। बोलो बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आदम, आस्ताना बहादुर शाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए इमाम अहमद रजा फारवे बरेलवी ने कहा है, लिखा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पर्चा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पर्चा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तालीम बढ़ रही है, तालीम हो गई, आपकी उम्र 13 साल की हो गई, वहाँ की तालीम खत्म हो गई और आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, आपके किफालत आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सुमई के सिफत हुई और जब हजरत अब्दुल्ला सुमई के सिफत हुई, हजरत अब्दुल्ला सुमई का भी इंतकाल हो गया। अब आपकी वालिदा है, बेवा है और आपकी वालिदा बूढ़ी हो चुकी है। आप अपनी वालिदा से कहते हैं, प्यारी अम्मी जान, इल्म हासिल करने के लिए मुझे कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि इल्म के बगैर चारा नहीं। वो आप अंदाजा लगा लें कि मतलब बूढ़े हो गए हो और आपका बच्चा अगर आपसे तालीम हासिल करने के लिए कहीं जाने को कहे, आपका कोई वारिस ना हो तो कदा आप नहीं जाने देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी वालिदा ने कहा, बेटा अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन ए बेटा तुम्हारे बाप के विरासत, तुम्हारे बाप के माल में से सिर्फ 80 दीनार बाकी है, सिर्फ 80 असरफियाँ है, जिसमें 40 तुम्हारे छोटे भाई का। बेटा जाओ, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, बेटा जान आए या जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत सब बर्दाश्त करने वाले के बेटा झूठ नहीं बोलना, सुभान अल्लाह, झूठ नहीं बोलना बेटा, झूठ नहीं बोलना। कहा मैंने सुना है अम्मी जान, बगदाद में बहुत बड़ा इदारा है, मैंने सुना है तालीम बगदाद में बहुत बेहतर है। आपकी वालिदा ने कहा अगर कोई काफिला जाने वाला हो तो तैयार हो जाओ। आपने पता लगाया, काफिला जाने के लिए तैयार था। आपकी वालिदा ने आपके सदरी के अस्तर में 40 दीनार छुपा दिए, तो 40 दीनार आपके सदरी में छुपा दिए और उस काफिले के साथ कर दिया। अब काफिला आगे चला, 40 डाकू उस काफिले को घेर लेते हैं, चारों तरफ से काफिले को लूटा जा रहा है, तलवारें चल रही है। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी एक साइड खड़े हैं और जब काफिला वालों ने माल लूट लिया तो एक डाकू ने आपसे पूछा, मेरे लड़के तेरे पास कुछ है? आपने कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा 40 असरफी। तो उसने डाकू ने सोचा शायद ये बच्चा मजाक कर रहा है, शायद ये बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है, वो चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने भी पूछा ये बच्चे तेरे पास कुछ है? तो कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा 40 असरफी। उसने सोचा कि हो सकता है बच्चा मजाक कर रहा हो और डाकू तो यहाँ से चले गए। जब अपने अफसर के पास पहुंचे, जब अपने डाकुओं के सरदार के पास पहुंचे, माल इकट्ठा किया गया, तकसीम होने लगा, बात होने लगी। इसमें एक बच्चा ऐसा है जो बताता है मेरे पास 40 असरफी है। दूसरे चोर ने कहा हाँ मैंने भी सुना है, वो बता रहा था कि 40 असरफी है। अब डाकू ने माल रख दिया, कहा अभी तकसीम नहीं होगा, अभी बांटा न जाएगा, अभी बांटेंगे नहीं, जाओ उस बच्चे को लेकर आओ। चोर गया, उस बच्चे को लेके आया, वो डाकू लेकर आया। और जब डाकू के सरदार ने जब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा ये बच्चे तेरे पास क्या है? तो कहा मेरे पास 40 असरफी है। कहा कहाँ है? कहा मेरे अस्तर के अंदर रखा है। उसने डाकुओं से कहा इसका अस्तर फाड़ दिया जाए। जब अस्तर फाड़ा गया तो 40 दीनार, वो 40 असरफियाँ गिरी। अब वो हैरान है, उसने कहा ये बच्चे मैंने तुम्हारी तलाशी नहीं दी, ये बच्चे मैंने तुम्हें तंग नहीं किया, ये बच्चे मैंने तुम्हें मारा नहीं, ये बच्चे तू जानता है हम डाकू हैं, ये बच्चे मैंने तुम्हारे साथियों का माल लूटा है मैं, लेकिन तूने मुझसे झूठ क्यों न बोला? तुमने मुझसे सच क्यों बता दिया? तो हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को जलाल आ गया और उन्होंने कहा ये डाकुओं के सरदार सुन, ये 40 असरफी क्या 40 लाख असरफियाँ होती तो चलते वक्त मेरी माँ ने नसीहत की थी क्यों कादिर जान आए या जाए बेटा झूठ न बोल। तो मैं असरफियाँ देखूं या अपने माँ की बात रखूं? तो इतना सुनना था, बात तीर की तरह कलेजे में चुभ गई। उस रोने लगा, डाकुओं का वो सरदार होने लगा। उसने कहा ये बच्चे वो भी इतना छोटा है और अपने माँ के बात का इतना लिहाज करता है और हमें दे हम अल्लाह से किस तरह फिरे हैं, हम अल्लाह से किस तरीके से अलग हो गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। हम इतने जमाने से डाका मारते हैं, ये बच्चे मैं
जब उसने सारा माल जिनका दिया था वापस कर दिया, और वापस कर देने के बाद सैयद अब्दुल कादिर के हाथ पे हाथ रखा और कहा, ये बच्चे तू जल्दी मुझे तौबा करा दे, मुझे मतलब कलमा पढ़ा दे। अब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने उसे तौबा कराया, कलमा पढ़ाया, और कलमा पढ़ाने के बाद जैसे ही कलमा उस चोरों के सरदार ने पढ़ा तो 42 चोर उन्होंने कहा, ए सरदार, जब तक तू डाका मारता था हम तेरे साथ थे, जब तक तू चोरी करता रहा हम तेरे साथ रहे, तुझे सरदार मानते रहे, आज तूने तौबा कर लिया है तो तू मतलब तौबा करने के बाद मुसलमान पक्का हो गया है। हम भी मतलब सैयद अब्दुल कादिर के हाथ पर हाथ रखकर तौबा करते हैं, तू मतलब चोरों में भी हमारा सरदार था और तौबा में भी हमारा सरदार है। तारीखों में आया है कि अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर तौबा करने के बरकत से 40 डाकुओं को अल्लाह ने वली कामिल बनाया।